Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today in this session, we are going to observe about measuring time in standard fifth in mathematics subject. So I very welcome you all students to this MCGM VTC online video session. And in this session today, we are going to do the practice set 45. Okay, so let us start by this presentation. So here is a question on your screen, and you're observing that 2 hours and 30 minutes plus 4 hours and 55 minutes. Okay, so we are supposed to do the addition here. So here we made one table, and you will see here that is hours in left hand side and minutes in right hand side. Okay, so we are supposed to do the addition of 2 hours and 30 minutes. So here we just make the column for hours and minutes. So here we are supposed to do the addition of 2 hours 30 minutes and 4 hours 55 minutes. Okay, so here we will start the addition of this. So 5 will be 5 here, 3 plus 5 will be 8, and 2 plus 6 will be 8 here. Okay, so you will see here this one 5, this one 8, and this one 6. Okay, so finally you done here the addition of hours and minute, but you will you आपको ये बात अच्छी तरह से समझ रही होगी कि 85 मिनट्स हम कभी नहीं लिखते हैं, राइट? सो वी आर सपोज टू डू here to convert the hours into minutes. So 85 minutes means 60 minutes plus 25 minutes means 1 hour and 25 minutes. Okay, so we do here the addition of 1 hours and 65 1 hour and 25 minutes, so it would be 7 hours and 25 minutes. Okay, so after doing the addition here, means 6 hours and 85 minutes, so 6 plus 1 means 10 hours and 25 minutes here. Okay, like this. So thereafter we'll move for the next question, and that is on your screen. 3 hours and 50 minutes plus 4 hours and 20 minutes. So यहाँ पर हमें इसकी जमा करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया, एक कॉलम में घंटे लिया और दूसरे कॉलम में मिनट्स लिया है. ठीक है, अब 3 आवर्स है और 50 मिनट्स है, उसे हमने रखा है 4 आवर्स है और 20 मिनट्स है. ठीक है, तो इसका एडिशन आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें किस तरह से मिलेगा. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ज़ीरो, इसका एडिशन जब करेंगे हम यहाँ पर तो ज़ीरो का ज़ीरो मिलेगा. 5 plus 2 will be 7, and then 3 plus 4 will be 7. So 7 hours and 70 minutes यहाँ पर हो गया है ना. तो 70 मिनट्स हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं. ओके, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 70 मिनट्स को कन्वर्ट करते हैं 1 आवर, और 70 minutes will be 10 minutes plus 60 minutes plus 10 minutes. Okay, so you will see here that 10 minutes will be 1 hour, 10 and 60 minutes means 10 minutes. So you will see here that would be 7 hours 70 minutes means 1 hour plus 7 hour plus 1 hour is equal to 8 hours and 10 minutes. So 8 hours and 10 minutes will be the answer here. Okay, so the addition of 3 hours 50 minutes plus 4 hours 20 minutes will be 8 hours 10 minutes. Okay, so here's the next question. 3 hours
45 minutes plus 1 hour 35 minutes. So the addition for this one, so here is the table. We made the column, the separate column is for hours and for minutes. So 3 minutes and 45, 3 hours and 45 minutes. Thereafter 1 hour and 35 minutes. Okay, so the addition of 5 plus 5 is equal to 10. 1 will be carry over, so 1 plus 4 5, 5 plus 3 would be 8. So 80 minutes is here, and 3 plus 1 4 will be here. So like this, you see here the addition when we will see here. So the converse, we are supposed to convert the 80 minutes into hour. So 80 minute is equal to 60 minute plus 20 minutes. So 80 minute is equal to 1 hour and 20 minutes. So you will see here that 4 hours and 80 minutes is equal to 4 plus 1 hour and 20 minutes. Okay, so you will see here that 5 hours and 20 minutes will be the answer here, like this. Okay, so you will see here that 5 hours and 20 minutes is the answer. Okay, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 4 घंटे 15 मिनट है और 2 घंटे 50 मिनट है। ठीक है, इसे हमें यहाँ पर एडिशन करना है। तो 4 घंटे हमने लिया यहाँ पर और 15 मिनट इसमें जमा करना है, 2 घंटे और 50 मिनट। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर के 5 का 5 मिलेगा हमें, 5 जमा 1 6 मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे 65 मिनट्स और 2 प्लस 4 विल बी 6 हेयर। ठीक है, तो 6 मिनट और 65 मिनट्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 65 मिनट्स यानी क्या हो गया है, ये हो गया हमारा, यहाँ पर अगर देखते हैं हम यहाँ पर तो 65 मिनट्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स फॉर 1 आवर एंड प्लस 5 मिनट्स। सो 65 मिनट्स मीन्स 1 आवर एंड 5 मिनट्स। ओके, सो we'll do the addition here. So 6 plus 1 7, so 7 hours and 5 minutes will be the answer here. Okay, 7 hours and 5 minutes. Okay, like this we can do the addition here. Okay, अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग है। ठीक है, यहाँ पर तफरीक करना है हमें। तो तफरीक में आप देखेंगे 3 hours and 10 minutes माइनस 2 hours and 40 minutes। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पर देखना है। सो यू विल सी हेयर आवर्स 2 hours हो गया, इसमें से माइनस करना है हमें 2 hours and 70 minutes में से हमें माइनस करना है कितना, 3 hours and 10 minutes। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम माइनस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर 3 hours और 10 minutes है, इसमें से 2 hours और 40 minutes को माइनस करना है ना। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 hours 10 minutes और 2 hours 40 minutes को इसमें से माइनस करना है। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 0 का 0 रहेगा और आप देखेंगे यहाँ पर 1 में से 4 माइनस नहीं होता, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 लेंगे, यानी 1 घंटा अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो इट वुड बी 70 मिनट्स। मीन्स 1 घंटे का कितना होता है, 60 मिनट्स होते हैं ना। तो यहाँ पर हमने 60 प्लस ये 10 तो कितना हो गया, 70 मिनट्स हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम 70 मिनट्स में से 40 माइनस करेंगे, मीन्स 7 माइनस 4 विल बी 3 हेयर। ठीक है, यानी 30 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है तो रिमेनिंग कितना है, हाँ 1 घंटा हमने ले लिया था यहाँ पर। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कितना बाकी है, यहाँ पर 2 ही बाकी है। ठीक है, 2 hours ओनली। सो 2 hours माइनस 2 hours, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 0। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पर जवाब हो गया इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 40 कैन नॉट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10, देयरफॉर वी बोरो हेयर
1 hour and convert it into 60 minutes. ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, उसको 60 मिनट में कन्वर्ट किया है. एंड here we got the answer afterwards 30 minutes. Okay, like this we can do the subtraction here. And now here is another question which is in on your screen. 5 hours 20 minutes minus 2 hours 35 minutes. अब यहाँ पर हमें देखना है इसे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, टेबल बनाया है. अब इसमें से हमें 5 आवर्स में से जो है तो अभी सब्सट्रैक्शन करना है. कितना, 5 आवर्स 20 मिनट्स में से 2 आवर्स और 35 मिनट्स का सब्सट्रैक्शन है. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने यहाँ पर जो है तो 5 आवर्स 20 मिनट्स है, इसमें से सब्सट्रैक्शन 2 आवर्स और 35 मिनट्स का है. तो 5 आप देखेंगे यहाँ पर 0 में से माइनस नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लेंगे बाजू से. ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. तो 10 में से 5 माइनस किया तो 5 रहेगा यहाँ पर. अब यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर है 1. ठीक है, अब 1 में से 3 जो है तो माइनस नहीं होता है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 1 यहाँ पर लेते हैं, यानी 1 घंटा हमने यहाँ पर लिया. 1 घंटा में 60 मिनट्स. ओके, सो यू विल सी है द 60 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स will be 80 मिनट्स. तो इसलिए आपको यहाँ पर ये 80 मिनट्स नज़र आ रहे हैं. ओके, सो यू विल सी here that we are supposed to minus 35 from 80, so you will get here 45. Okay, so you will see here that this 4 will remain 4. So 4 minus 2 will be 2. So answer will be 2 hours and 45 minutes. Okay, this will be the answer here. And now this third one, you will see here the question 3 hours and 85 minutes. Four hours and 25 minutes minus 1 hour and 55 minutes. ओके, यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है. ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसे 425 में से 155 माइनस करना है. ठीक है, तो किस तरह से माइनस करेंगे हम इसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 में से 5, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 55 में से, यहाँ अगर आप देख रहे हैं 5 में से 5 माइनस किया तो 0 हमें मिलेगा. लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 में से 5 माइनस नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ से 1 लेते हैं. तो यहाँ पर 3 घंटे बाकी रहते हैं. ओके, और here you will see here that if we get here 1 hour it means 60 minutes यहाँ पर हमने लिया है. ठीक है, so you will see here that 60 plus 25 will be 85. ठीक है, 85 मिनट्स में से अब 55 मिनट्स को अगर हमने यहाँ पर निकाला तो यहाँ पर आप देखेंगे 30 बाकी रहेगा. ओके, so you will see here that if here is a 3 is remaining here, so if we minus from 3 to 1 you will get here 2. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 hours and 30 minutes will be the answer here. ठीक है, इस तरह से. तो अब देखेंगे सब्सट्रैक्शन हम इस तरह से करेंगे इसके अंदर. So here is the another question. Subtract 6 hours 50 minutes minus 2 hours and 45 minutes. So you will see here 5 hours and 75 minutes. 6 hours and 15 minutes. And then 2 hours and 45 minutes. Okay, तो यहाँ पर हमें जो है तो सब्सट्रैक्शन करना है इसका. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सेम जैसे हमने पहले किया है यहाँ पर, तो उसी तरह से हमने यहाँ पर भी करना है. तो हमने यहाँ पर 60 मिनट्स लिया है. ठीक है, तो यहाँ पर 75 मिनट्स हो गया. ठीक है, 75 मिनट्स में से हम यहाँ पर देखेंगे 45 मिनट्स हमने निकाला है यहाँ पर. ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया, तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 3. ठीक है, सो यहाँ पर आप देखेंगे 6 में से 1 यहाँ पर हमने ले लिया था आवर्स में, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 आवर्स बाकी है. 5 आवर्स माइनस 2 आवर्स, सो इट विल गेट 3 आवर्स. ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स विल बी द आंसर हेयर. ठीक है, तो बच्चों आप देखेंगे काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा हमें यहाँ पर
घंटे और मिनट पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, अ गवर्नमेंट ऑफिस ओपन्स एट 7 इन द मॉर्निंग, closes at 3 in the afternoon, how long is this office open? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सरकारी दफ्तर जो है तो सुबह 7 बजे शुरू होता है और दोपहर 3 बजे बंद होता है, तो वो दफ्तर कितने अरसे तक जारी रहता है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि वक्त की जो है तो 24 घंटे वाली पैमाइश के मुताबिक आप देखेंगे यहाँ पर कि सुबह 7 बजे से ये यानी 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, यानी आप देखेंगे कि अगर हम उस घड़ी का यहाँ पर टाइम लेते हैं तो वो 15 मिनट 15 बजाएगी उस घड़ी में, है ना। तो यहाँ हम तफरीक करेंगे इसे, ठीक है, तो हमें यहाँ पर मालूम हो जाएगा, है ना। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 15 मिनट्स, हमने यहाँ पर 15 आवर्स ले लिया इसका 24 आवर्स वाली घड़ी का, ठीक है। उसमें से हमें यहाँ पर 7 आवर्स को माइनस करना रहेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसे सब्सट्रैक्ट करने के बाद में आप आंसर देखेंगे, यहाँ पर हमें 8 मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो क्या समझ में आता है इससे हमें यहाँ पर समझ में आता है कि अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक 7 इन द मॉर्निंग मीन्स 7 and 4 in the afternoon, it is not 4 actually, it is 3. So 3 in the afternoon means 15 hours. Okay, so here we have to subtract 7 from 15. Okay, so we got the answer here. The office remained open for 8 hours, it means. Okay, यानी दफ्तर जो है तो 8 घंटे जारी रहता है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आया है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर। अ मूवी starts at 45 minutes past in 45 minutes past 3 in the afternoon and finishes 2.5 hours later. At what time does the movie end? ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि दोपहर 3:45 पर शुरू होने वाली फिल्म 2.5 घंटे में ख़त्म हो गई, तो वो कितने बजे ख़त्म हुई है ये बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि the 2.5 hours means 2 hours and 30 minutes. ओके, तो यहाँ पर हमने 2 hours and 30 minutes लिया है ना। ओके, then we have to add 3:45 to 2:30, so we will get here 75 minutes is equal to 60 minutes plus 15 minutes, so it would be 1 hour and 15 minutes. Okay, so here you will see that the addition of 3:45 to 2:30, here you will get 5 hours and 75 minutes, means 5 plus 1 hour means 15 minutes is equal to 6 hours and 15 minutes. Okay, so answer will be the movie ends at 6 hour 15 minutes. ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा बच्चों यहाँ पर कि 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट होते हैं ना। यहाँ 3 घंटे 45 मिनट और 2 घंटे 30 मिनट की जमा हम यहाँ पर करें हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 15 minutes plus 60 minutes is equal to 75 minutes. Okay, and 1 hour and 15 minutes means 75 minutes. Okay, तो यहाँ पर जवाब हमें क्या मिला है कि जो एडिशन हमने किया यहाँ पर 3:45 plus 2:30, so that would be 6:15 minutes पर ये यानी 6:15 ये फिल्म जो है तो ख़त्म हुई है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि सखाराम वॉज प्लॉइंग द फील्ड फ्रॉम 8 in the morning at 12:30 in the afternoon he stopped and started for home.
He reached home at 1:30. How long was he plowing the field? How did how long did it take him to reach home from the field? यहाँ पे सवाल क्या किया हुआ है, सवाल किया है कि सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खेत में जो है तो हल चलाया इन्होंने, और 1:30 पर जो है तो खाना खाने के लिए घर आया है। तो इसने कितने घंटे खेत में हल चलाया, घर आने में इसे कितना वक्त लगा है, ये हमें यहाँ पर देखना है। ओके, तो यहाँ पर हमने इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर कि काम स्टार्ट जो किया उन्होंने, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 12:30 तक के इन्होंने काम किया है ना, 12:30 इन द मॉर्निंग, और काम इन्होंने शुरू किया था सुबह 8 बजे से। ओके, तो यहाँ पर हम 12:30 माइनस करते हैं 8 को, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4:30। ठीक है, तो आप देखेंगे इसी तरह से कि इसी तरह से 1:30 यानी कि 13:30 से इन्होंने काम जो है तो घर पर ये पहुँचे हैं कब, 13:30 को। सो 13:30 से आप देखेंगे यहाँ पर कि 12:30 को उन्होंने काम रोक दिया था। ओके, सो 12:30 माइनस 13:30, सो यू विल गेट हेयर 1 आवर। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि वक्त की 24 घंटे वाली पैमाइश के मुताबिक हमने देखा कि दोपहर के 1:30 का मतलब हमने यहाँ पर क्या लिया है, 13:30 लिया है। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू 24 आवर्स क्लॉक 1:30 इन द आफ्टरनून। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये, ठीक है। सो इट मीन्स 13:30। ओके, और इसीलिए आपने देखा यहाँ पर कि जो आंसर हमें यहाँ पर देना है, जो सवाल यहाँ पर पूछा है उसका आंसर हम ये देंगे पहले कि सखाराम प्लॉट द फील्ड 4 hours 30 minutes, ये आंसर हमें यहाँ पर मिला है इस तरह से। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन है, ही टुक 1 hour टू रीच होम फ्रॉम द फील्ड, और यहाँ पर हमने देखा कि उसने 12:30 बजे काम बंद किया था और 1:30 बजे घर पहुंचा, यानी उसको घर पहुंचने के लिए 1 घंटा लगा है। ओके, सो ही टुक 1 hour टू रीच द होम। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद का सवाल है, राम भाव स्टार्टेड वाटर पंप at 10:30 at night and put it off the same night at 11:45. How long was the water pump was on? यहाँ पर हमें देखना है कि रात 10 बजे पानी का पंप शुरू किया है और इसी रात को 11:45 बजे पंप बंद कर दिया है। तो कितने वक्त के लिए पंप चलाया गया है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसे और देखते हैं तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा। ये कैलकुलेशन हम यहाँ पर ले लेते हैं पहले स्क्रीन पर। अभी समझ लेते हैं ऐसे कि अगर आप 24 घंटे वाली घड़ी की पैमाइश में देखते हैं तो आपको समझ में आएंगे कि रात 10:30 बजे का मतलब होता है 12, यहाँ पर वो होता है 22:30। ओके, 10:30 का मतलब क्या होता है, 22:30 होता है ना। द 10:30 एट नाइट मीन्स 22:30। ठीक है, और रात के 11:45 यानी कि 11:45 एट नाइट मीन्स 11:45 मीन्स 12 मीन्स 23:45। so here is a 23:45. So we are supposed to do the subtraction here. So after doing the subtraction you will get answer here 1 hour and 15 minutes. So you see here subtracted 22:30 from 23:45. So we'll get here the answer, Rambhav kept the pump on for 1 hour and 15 minutes. Okay,
this same will we can also do here, like this 11 and 45, पौने 12 बजे यानी 11:45 पर ख़त्म किया, और शुरू कितने बजे किया था? 10:30 बजे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो विल गेट हेयर 1 hour and 15 minutes। यहाँ भी हमने देखा 1 hour and 15 minutes इस तरह से। ठीक है, तो रामभाव केप द पंप ऑन फॉर 1 hour and 15 minutes। ठीक है, इस तरह से हमें मालूम हुआ कि इन्होंने जो है तो 1 घंटा 15 मिनट तक की यानी सवा घंटा जो है तो पंप चलाया है। ओके, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक सवाल दिया हुआ है कि गीता taught in the class for 2 hours and 25 minutes in the morning and 1 hour and 45 minutes in the afternoon. How long was she teaching in all? यहाँ पर हम देखें कि सवाल को ध्यान से तो हमें समझ में आएगा कि इन्होंने जो है तो सुबह 2 घंटे 45 मिनट और दोपहर 1 घंटा 45 मिनट क्लास में पढ़ाया है। तो उन्होंने कितनी देर क्लास में पढ़ाया है ये हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे सुबह में 2 hours and 25 minutes है और आफ्टरनून में 1 hours and 45 minutes है। तो इसका एडिशन हम अगर करते हैं तो 3 hours और 70 minutes होता है। ठीक है, तो 70 मिनट्स को हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ऐड टू फाइंड द टोटल टाइम 70 मिनट्स मीन्स 1 hour and 10 minutes होता है। ठीक है, सो 3 hours and 70 minutes इज इक्वल टू 3 + 1 hour। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 10 minutes is equal to 4 hours and 10 minutes। So you will get answer here 4 hours and 10 minutes। Okay, तो इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है आंसर कि गीता ने जो है तो कितने घंटे पढ़ाया है 4 hour and 10 minutes। ठीक है, इस तरह से। Now we will move for the 8th question। If a bank is open for business at 10 in the morning to 4:30 in the evening, how long it opens? आसान से सवाल है बच्चों। बैंक का काम जो है तो सुबह 10 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक जारी रहा, तो बैंक का कामकाज कितने अरसे तक चलता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि वक्त की जो पैमाइश की अगर 24 घंटे की वाली पैमाइश के मुताबिक अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं यहाँ पर तो आपको ये बात समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू 24 आवर्स क्लॉक 4:30 in the evening means 16:30। so here subtract 10 from 16:30। ठीक है, तो यहाँ पर हम 16:30 से जो है तो 10 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट here 6:30। so the bank remain opens for 6 hours and 30 minutes। okay, इट विल बी द आंसर। बैंक का कामकाज कितना चला है? 6 घंटे 30 मिनट चलता है। इस तरह से जवाब हुआ हमारा। इसके बाद आप देखेंगे इफ़ अ शॉप इज ओपन फ्रॉम 9:30 AM to 10 PM, हाउ लॉन्ग इज इट ओपन? सो यू विल सी है कि अगर एक दुकान 9:30 AM पर खुलती है और 10 PM पर बंद हो जाती है तो वो दुकान कितने अरसे तक खुली रहती है, कितना टाइम खुली रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके कैलकुलेशन इस तरह से है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 24 आवर्स क्लॉक 10 PM is 22। here we subtract 9:30 from 22। okay, so we'll see here that after doing the subtraction means 22 minus 9:30, 22 minus 9:30, so you will get here 12 hours and 30 minutes। so answer will be the shop is open for 12 hours and 30 minutes। okay, this will be the answer here। and here is a question on your screen। what is the question here? कोल्हापुर से
15:30 पर रवाना होने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस दूसरे दिन 20:15 पर गोंदिया पहुंचती है, तो कोल्हापुर से गोंदिया के सफ़र में कितना वक्त लगता है? ठीक है, इफ़ द महाराष्ट्र एक्सप्रेस leaving from Kolhapur at 15 hours and 30 minutes and arrives at Gondia the next day at 20 hours and 15 minutes. How long is the journey from Kolhapur to Gondia? Okay, so you will see here the first find the time from 15:30 to 24, then find the time from 24 to 2015. So here यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि 15:30 से 24 घंटे का जो अरसा मालूम करने के लिए तफरीक करना होगा हमें इसके लिए ना। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि 24 घंटे यानी कि 00 टाइम हो जाएगा वो, है ना। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 20:15 का अरसा मालूम करने के लिए यहाँ पर तफरीक करना है, आखिर में दोनों जवाबों की जमा करना होगा हमें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके लिए हमने यहाँ पर 3 जो है तो अलग अलग यहाँ पर कॉलम जो है तो बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं 24 आवर्स और इसमें से माइनस करते हैं 15 आवर्स को एंड 30 मिनट्स को, तो यू विल गेट हियर 8 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ओके, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि दूसरे टेबल में 20 आवर्स एंड 15 मिनट्स है, इसे माइनस करते हैं हम यहाँ पर 00 से, तो यू विल गेट हियर 20 मिनट्स एंड 20 hours and 15 minutes. And now we'll do the addition of 8 hours and 30 minutes with 20 minutes 20 hours and 15 minutes. So you will get here answer 28 hours and 45 minutes. Okay, तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे कि the journey from Kolhapur to Gondia takes 28 hours 45 minutes. ठीक है, इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने वक्त की पैमाइश के ताल्लुक से जो सवालात और जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हल किया है 45, यह आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, सवालात कुछ थोड़े से हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब 24 आवर की घंटे वाली पैमाइश का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर कभी जो है तो घंटे की जमा करना पड़ता है, 60 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ता है घंटे में। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, वरना आम जैसे आप जमा करते हो तफरीक करते हो वैसे ही ये जमा तफरीक है। ओके, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। सो बच्चों ये आप अपने तौर पर कोशिश करें और प्रैक्टिस पहले आप ये वीडियो देख कर करें, बाद में आप इन सवालात की प्रैक्टिस अपने तौर पर करें। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।